Okay, so welcome guys. This is the second session we're having. So हमने first session में we talked about why we should be doing research as an undergraduate. So now moving on. So before we start a research journey, we have to know how do we actually read a paper, no? Because we have to know कि paper दिखता कैसे है, how do you go through it, how do you find it before you do uh, make your own, do your own research. Like you have to first know how to read a book before being able to write a book, right? So this is why this session is important, and because a lot of you, since you were not exposed to, you might not have been exposed to research papers, ऐसे, so this is an important session. So I think we should begin with it. So and कभी भी if my audio अगर ना आए, so you can inform me, okay? One second please, एक छोटा सा glitch हो रहा है. Fine. वो डिवाइस अपडेट हुआ था, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था. Okay, let's begin. So before we start to learn कि हम अनुपमा your videos on. So before we start to learn how do we read papers, we have to know where do we find them. We have to know because it's not like everyone would know कि where these papers are available, and this must be a common doubt कि how do we exactly find it. So I'm here, in this, I'm this person, and I'm going to help you find these research articles. So moving on, we have three primary sources. One to is your simple Google Baba. Then the two less heard of Google Scholar and PubMed. And one by one हम तीनों discuss करेंगे. So Google Pay, let's say you simply go to google.com, and let's say you are curious about something, because your research begins with curiosity, है ना? And you got to have some sort of curiosity किसी भी चीज के बारे में, it could be about anything. And let's just say you're curious about what is the relation between hypertension and the salt intake, because you always wondered कि घर पे ऐसा क्यों कहते हैं कि बेटा नमक कम खाया करो, बीपी में दिक्कत हो जाएगी. You were simply curious about that, and for the sake of curiosity, you simply search for that particular सॉरी, मेरे डिवाइस में दिक्कत आ गई. मेरा आईपैड पे मेरा जूम क्रैश कर गया है, तो मैं री लॉग इन कर रहा हूँ. तो 1 सेकेंड. मैं बस री लॉग इन कर रहा हूँ. कमिंग बैक 1 सेकेंड.
Sorry for that. Am I audible now? चैट पे बता दो, am I audible now? ओके यार, आई हेट यू। आज नया अपडेट आया है, आई थिंक अपडेट की वजह से मेरा आईपैड क्रैश कर गया, सॉरी। गूगल रिजल्ट वाली स्क्रीन विजिबल है? गूगल रिजल्ट्स, ओके ठीक ठीक है। तो मैं जस्ट शॉर्टली बता दे रहा हूँ। हमने गूगल पे हाइपरटेंशन एंड सॉल्ट इनटेक एंटर किया, एंड these are the results that pop up. So यूजली दो टाइप रिजल्ट्स आते हैं। इट कुड बी जनरल मीडिया आर्टिकल्स, या फिर ये पेपर्स, दीज आर द रिसर्च पेपर्स, इस टाइप के। सो दिस इज द डिसएडवांटेज गूगल, व्हेन एवर यू एंटर सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं आएगा, सब कुछ आएगा उसमें, राइट? सो हाउ डू नो ये जो है, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रिसर्च पेपर में जो रिजल्ट आता है वो क्या क्या कन्वे कर रहा होता है, राइट? दिस इज द साइट रिसर्च पेपर की, ठीक है? एंड दिस पार्ट इज द टाइटल, और हर हर रिसर्च पेपर के दो पार्ट होते हैं। यू वुड हैव अ हेडिंग, टाइटल, या फिर से हाइपोथेसिस कह लो। तो दिस इज दैट पार्ट, है ना? दिस इज द टाइटल और द हाइपोथेसिस, एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी उसका यूजुअली जैसे गूगल समरी दिखाता है तो वो उसका पार्ट है। एंड समरी क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपके कीवर्ड थे वो यहाँ से मैच कर रहे हैं, इसलिए समरी में वो सब आता है कीवर्ड्स देख के। So this is the title, okay? Now what are these things? This is the audio. Oh, sorry. This is the author, S.K. Ha. This is the name of the author, and okay. Then we come to this thing, 2014. This tells this is the year when the paper was published. In the year of 2014, it was published. Then comes this, cited by 202. What does this mean? So in the world of research, there's something known as citation. ना, आप अगर कुछ भी कह रहे हो, you cannot just say it. You have to give a reference. So this is what citation is. कि इस पेपर को 202 लोगों ने इसका रेफरेंस दिया है. They have quoted this paper. Like quoting, if you want to understand it, if I say कि where the mind is without fear, I am quoting Rabindranath Tagore. Yeah, I am citing Rabindranath Tagore. So this means कि those 202 people, when they had to state a fact, they quoted this particular पेपर कि हम जो फैक्ट बोल रहे हैं हमने इस पेपर में पढ़ा था। क्योंकि इन रिसर्च आपको हर चीज का एक रेफरेंस देना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग, इवन द सिंपलेस्ट थिंग, है ना, सिंपल चीज लाइक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यू कैन नॉट से इट, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस रिसर्च में पाया गया कि नॉर्मल प्रेशर इतना होता है। तो दिस इज दैट। और ऑल्सो लाइक इसमें 202 लोगों ने किया है, यहाँ पे 19 लोगों ने किया है। तो विच इज द बेटर पेपर? दिस वन। बिकॉज जिस पेपर को ज्यादा ज्यादा लोगों ने साइट किया होता है, यानी उसकी स्क्रूटनी ज्यादा हुई होती है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर पेपर। जितना ज्यादा उसका एवेल्युएशन हुआ होता है और जितना अच्छा पेपर होता है उतना ज्यादा लोग उसे साइट करते हैं। तो दिस इज दैट। एंड दिस एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, ये इसके पेपर की हेडिंग्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो दिस इज व्हाट अ गूगल पेज लुक्स लाइक, दिस इज आल्सो सेम। तो अगर हम इस पे मान लो, अगर हम ये वाला पेपर खोलें, तो दिस इज व्हाट ओपन्स, है ना? ये जो पेज खुला है ये इसमें खुला है पबमेड पे। मैंने इनिशियली बताया था कि यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन पबमेड, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो गूगल ने डायरेक्टली पबमेड की लिंक दी है। एंड यहाँ से एक चीज आपको समझनी है कि जो रिसर्च होता है, रिसर्च इज पब्लिश्ड इन जर्नल्स। व्हाट आर जर्नल्स? जर्नल्स आर मैगजीन्स ना, मैगजीन्स सबको पता होंगी, है ना? तो लाइक अगर हो एंड आप पोएम्स लिखते हो तो आपकी पोएम्स बुक में पब्लिश होती हैं। एंड सिमिलरली इफ यू आर अ रिसर्चर,
तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हो दैट इज पब्लिश्ड इन दीज जर्नल्स. सो these ये जो जर्नल्स होती हैं, these journals can be directly found गूगल सर्च में. आप गूगल में सर्च करोगे तो जर्नल्स का लिंक आ जाता है. बट इन जर्नल्स की एक लाइब्रेरी भी होती है ना. दिस लाइब्रेरी इज पबमेड, जिसमें ये स्टोर है. तो गूगल ने इसका लिंक दिया था. यू विल अंडरस्टैंड इट. मतलब तो गूगल से हमने ये खोल लिया. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पेज में क्या क्या दिख रहा है. दिस थिंग दैट यू सी, दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल. मैंने जस्ट ये बताया कि कई सारी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जर्नल. So this is one of the journal, electrolyte blood pressure, electrolytes and blood pressure. This is the name of the journal. This is the month and year जब ये वाला research paper publish हुआ था, June 2014. This over here, you see 12 है, and then bracket में there is 1. 12 है, and then bracket में there is 1. So 12 means this is the volume and 1 is the issue. है ना. मैगजीन से हम सुना होगा. शुभ is saying I am not audible to him. बाकियों को am I audible कि सिर्फ शुभ को मैं audible नहीं हूँ? Am I audible to other people? Okay, wait. शुभ तुमने join audio किया है? तुम्हारे bottom screen के bottom left में. हाँ, तुमने audio नहीं join किया है शुभ. अरे यार, he won't be able to listen me. 1 second. Join. Always make a habit to read everything. मतलब not just what I send, anything. Read carefully. मैंने पहली लाइन में लिखा था you have to join audio. और कोई 19 बैच का है तो प्लीज कॉल हिम. शुभ इज नॉट इन द मीटिंग. चलो एनीवे आई एम कंटिन्यूइंग. कोई 19 बैच वाला से व्हाट्सएप कर देना प्लीज. सो हाँ, सो कंटिन्यूइंग. सो आप यू मस्ट हैव हर्ड मैगजीन्स में देयर इज दिस थिंग फलाना वॉल्यूम एंड फलाना इशू. तो दिस इज द वॉल्यूम 12, यानी 12 साल से ये पब्लिश हो रही है. एंड दिस इज द उस 12वें साल का पहला इशू. एंड दिस 7 to 18. सो अगर आप वॉल्यूम 12 का इशू 1 वाली मैगजीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड प्रेशर वाला खरीदेंगे तो पेज नंबर 7 to 18 में ज्यादा आर्टिकल you can find that article. So this is what it says. Then this is the again title or the title of the paper. This is the name of the author. और यहाँ सिंगल ऑथर है, मल्टीपल ऑथर्स भी हो सकते हैं. Then this is the content of the paper. यहाँ से स्टार्ट होता है abstract. This I will explain later. आगे चलते हैं. Then ये सब जो ऑप्शंस हैं ये भी मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा. ओके, आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर मैं कोई एक इंसान अपना ऑडियो ऑन कर ले एंड यू कैन जस्ट स्पीक गिविंग मी फीडबैक कि समझ में आया कि नहीं. एनीवन, अनुपमा, अमित, कोई भी, मतलब कोई एक इंसान. सर मेरा तो आया ही अभी है. इतनी देर से म्यूट हो रखा था, पता नहीं क्या. मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया अभी तक. ओके, चलो फिर मैं आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आगे लेट ना. तो यू कीप योर ऑडियो ऑन. मैं अब जब भी नेक्स्ट लाइव पे जाऊंगा यू जस्ट टेल मी कि अगर समझ में आया है कि नहीं, है ना. तो कोई एक इंसान फीडबैक देगा तो इट्स बेटर. ठीक है. ओके सर. हाँ, सो ये तो हमने गूगल सर्च किया. सेकंड ऑप्शन क्या था? गूगल स्कॉलर. हाउ डू यू कम टू गूगल स्कॉलर? scholar.google.com, है ना. या फिर सिंपली गूगल पे या गूगल स्कॉलर डाल दो तो उसकी लिंक आ जाता है. देन तो अगेन हम गूगल स्कॉलर में ये सर्च करेंगे हाइपरटेंशन एंड सॉल्ट इनटेक. ऑल्सो ये सब नीचे क्या है, ये सब मैंने अभी जस्ट बताया था कि देयर आर जर्नल्स, है ना. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जर्नल्स. सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स इन द वर्ल्ड. CDC, NEJM, JAMA, Lancet, हो सकता है आपने सुना भी हो. सेल, नेचर तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा. नेचर जर्नल, वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स इन द वर्ल्ड. साइंस, एल्सेवियर, ऑक्सफोर्ड, वेली. सो दीज आर जस्ट वन ऑफ द हंड्रेड्स. सो हमने गूगल स्कॉलर पे सर्च किया एंड ये आ गया. दीज आर द रिजल्ट. सो 5,62,000 रिजल्ट्स आए हमारे पास. बट व्हाट इज द एडवांटेज? जितना भी आया है सब कुछ रिसर्च पेपर है ना. कोई भी मीडिया आर्टिकल नहीं होगा, कोई भी फेसबुक का लिंक नहीं होगा. एवरीथिंग इज रिसर्च, मतलब एवरीथिंग इज अ रिसर्च पेपर. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पेज. इस पेज पे क्या क्या आता है. अगेन दिस थिंग इज द टाइटल ऑफ द स्टडी और द हाइपोथेसिस.
the relationship between hypertension and salt intake. ठीक है, these are the authors. These are the authors because multiple authors हैं. There can be many. This is the body of the study and क्योंकि keyword था तो इसलिए वहाँ से ढूंढ के done. And again मैंने हाँ जैसे अनुपमा नहीं सर, मतलब कंटिन्यू। ओके ठीक ठीक सर। तो मैंने साइटेशन बताया था, तो अगेन वही सेम चीज है ना, इसको 153 लोगों ने कोट किया है। सो इसको 153 लोगों ने कोट किया है, विच मीन्स कि अगर मान लो मैं कोई रिसर्च प्लान कर रहा हूँ और मैंने उसमें लिखा है कि देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोटेंशन एंड सॉल्ट इनटेक, ये मैंने कैसे कह दिया, तो मैं अपने पेपर में इस पेपर का रेफरेंस दूंगा। इसी तरह 153 लोगों ने इस पेपर का रेफरेंस दिया, तो दिस इज गुड पेपर, ये हो गया। एंड देन अगर इस पेपर को खोलना है, एक तो या तो यहाँ क्लिक कर दो, पेपर खुल जाएगा, बट जब हम एक्चुअली रिसर्च करते हैं तो हमें सिर्फ एक पेपर नहीं पढ़ना पड़ता है, हमें डजन्स ऑफ पेपर ना 30 40 50 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तो हमारे पास में टाइम नहीं होता है कि हम एक हर साइट खोल के देखें। सो दिस इज अ शॉर्टकट कि जहां जहां भी डायरेक्ट पीडीएफ अवेलेबल होगी, यू कैन सिंपली क्लिक इट हियर और यहाँ से सीधे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली हम प्रिंट करके पढ़ते हैं या तो अपने टैबलेट पे पढ़ते हैं, तो दैट अभी यूजफुल नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप 50 पेपर पढ़ने होंगे देन इट्स वेरी यूजफुल। तो सिमिलरली ये सब पेपर्स हो गए। दिस जब भी कोई भी रिसर्च पेपर यू हैव टू स्टडी, मेक इट अ रूल, बहुत पुराने पेपर्स नहीं पढ़ने होते हैं ना, मैक्सिमम 10 to 20 years, मतलब मोस्टली 10 years, बट मैक्सिमम 10 to 20 years। दिस इज इससे पीछे नहीं जाना होता। तो टाइम लिमिट कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे वी कैन सेट अ कस्टम रेंज एंड यहाँ से टाइम लिमिट आ जाएगा, तो उसके बाद क्या आएंगे, एंड देन दिस इज अ सॉर्टिंग एग्जांपल। तो ओके, दिस इज फाइन। चलो नेक्स्ट जाऊँ मैं, अनुपमा नेक्स्ट। यस सर। ओके ओके ओके। सो लेट्स जस्ट से मैं इसमें ये वाला अगर आर्टिकल खोलूंगी वाला है ना, तो यहाँ से लिंक खुलेगा, पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, लिंक खुलेगा है ना। सो आई वेंट देयर, आई गो देयर एंड ये क्या खुल रहा, दिस इज अ जर्नल साइट है ना, दिस इज अ जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन, जो हंड्रेड्स ऑफ जर्नल्स हैं, हर जर्नल की साइट होती है, तो उस जर्नल में खुला। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये जो दिख रहा है इसमें क्या क्या है। सो अगेन पहले तो सबसे बड़ा वाला ये दिखेगा, दिस इज अ वही टॉपिक ऑफ द स्टडी, ठीक है। देन this is the name of the journal. One thing that I want you to know, there are two kinds of articles जो आपको मिलेंगे, या तो फ्री आर्टिकल होगा या वो पेड आर्टिकल होगा ना। यू कैन नॉट रीड ऑल आर्टिकल्स, वो आप सर्च करने पे फ्री आर्टिकल ही पढ़ पाओगे, पेड आर्टिकल्स नहीं पढ़ सकते हैं हम। बट देर इज अ हैक अराउंड इट, वो मैं सेशन के एंड में बताऊंगा। सो इतना जान, तो दिस आर्टिकल इज अ पेड आर्टिकल है ना, ये आपको दिस इज आस्किंग यू टू बाय इट, सो यू कैन नॉट रीड इट। सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन है ना, अगेन वही चीज है, जब नीचे अगेन इट्स आस्किंग टू बाय, खाली वो एक एब्स्ट्रैक्ट देता है, मतलब पेड आर्टिकल्स में एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ द आर्टिकल। रिसर्च पेपर इज अ बिग पेपर, लाइक 2 3 पेज 4 पेज 5 पेज 10 पेज 12 पेज ऐसा होता है, बट ये खाली एक छोटा सा समरी है। कितना, आई थिंक मैक्सिमम 300 वर्ड्स का होता है, 300 वर्ड्स की समरी। दिस इज कंपल्सरी, हर पेपर में होता है, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, ताकि मतलब लेट्स से यू चूज टू बाय इट, तो आपको पता तो हो कि ये पेपर आपका काम का है कि नहीं, तो दैट इज व्हाई समरी एग्जिस्ट है ना। तो दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट इज। मैं नेक्स्ट जाऊं। जी सर। ओके, देन आता है हमारा थर्ड एंड फाइनल मेथड विच इज पबमेड ना। पबमेड के लिए सिंपली एज यू कैन गो pubmed.gov, और वही गूगल, सिंपली गूगल पबमेड ना, गूगल पबमेड, उसमें फिर जो क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, नहीं भी अवेयर है तो कोई बात नहीं। यूएस में देर इज दिस NIH ना, दिस NIH, दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। सो दिस इज द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूट यूएस में, सब कुछ इसी के थ्रू होता है। तो इसका एक पार्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। सो दिस इज मतलब आई थिंक द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। इसमें जितना भी ह्यूमैनिटी के पास डेटा सब यहाँ पे स्टोर्ड है। एंड देन इसका जो पार्ट है नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑनलाइन इनिशिएटिव जिसमें सारे आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसी का पार्ट है पबमेड है ना। सो पबमेड इज द वन
विच यू विल बी यूजिंग, है ना, मतलब मोस्टली 99% ऑफ टाइम आपको पबमेड ही यूज करना होगा. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो देयर इज समथिंग नोन एज इंडेक्सिंग, जर्नल इंडेक्सिंग. हाँ, तो जैसे मैंने बताया, देयर आर हंड्रेड्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स. जो थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स हैं, वो उसका लिंक आपको गूगल पे मिल जाएगा इफ यू सर्च समथिंग. बट जर्नल्स, मतलब there are best journals, there are excellent journals, there are good journals, there are okay journals, and there are bad journals, and there are एकदम बर्बाद journals. ना, journals तो हर टाइप की हो सकती हैं. So and when you are searching, अगर आप जैसे आप यू हैव हैबिट ऑफ सिंपली सर्चिंग गूगल, एंड गूगल सर्च करके आपने कोई आर्टिकल साइट कर लिया गूगल से, एंड दैट जर्नल हैपन टू बी अ बैड जर्नल, तो उसकी वहां पे तो आप साइट कर लोगे. दिक्कत तब आएगी जब आप अपना रिसर्च पब्लिश करने जाओगे, बिकॉज वहां पे एनीवन कैन पॉइंट आउट कि दिस जर्नल इज यूजलेस ना, इस जर्नल को आपने क्यों साइट किया है. तो इतना टाइम नहीं होता है कि हर जर्नल को हम पर्सनली सर्च करें कि अच्छा है. देयर इज अ इंडेक्स, मतलब उसको चेक करने का तरीका होता है, बट वी डोंट हैव टाइम कि हर जर्नल को अलग से गूगल करके चेक करें. तो वहां पे इस इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है. इंडेक्सिंग इज sort of a up social status sort of, कि मतलब लेट्स जैसे, मतलब एक गूगल स्कॉलर है, एक पबमेड है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर लाइब्रेरीज. सो गूगल स्कॉलर जो है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है. तो जो तो टू अंडरस्टैंड दिस, तो गूगल स्कॉलर पे आपको बेस्ट जर्नल से लेके ऐसे ओके 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 जो जर्नल्स होते हैं वहां तक मिल जाएंगे. वो जो जर्नल है वो गूगल स्कॉलर पे मिलेगा, लेकिन जो एकदम खराब जर्नल है वो वो गूगल स्कॉलर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल स्कॉलर पे इंडेक्स नहीं है ना. दैट इज व्हाट इट मींस. बट एट द सेम टाइम पबमेड पे जो जर्नल्स इंडेक्स हैं वो रेंज करेंगे बेस्ट से गुड तक, है ना. लाइक पबमेड में जर्नल्स वुड रैंक फ्रॉम गुड टू बेस्ट, बट गूगल स्कॉलर में जर्नल्स वुड रैंक फ्रॉम ओके जर्नल्स टू बेस्ट जर्नल्स. तो उसका एडवांटेज क्या मिला? तो व्हेन यू विल सर्च ऑन पबमेड, तो आपका यहाँ पे ये टाइम बचेगा कि वॉट एवर जो भी रिजल्ट आएगा, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट कि दैट इज फ्रॉम अ गुड जर्नल, है ना. मतलब जो भी रिजल्ट आएगा आप किसी भी रिजल्ट को साइट कर सकते हो. इसका एडवांटेज मिलता है आपको साइटेशन में. सो व्हेन यू विल बी एक्चुअली डूइंग योर रिसर्च, तब वहां पे बहुत यूजफुल होता है, बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है. सो मतलब इन जनरल, मतलब अपने डेली यूज के लिए तो आप कहीं भी सर्च कर लो, बट व्हेन यू विल एक्चुअली बी डूइंग रिसर्च, सो प्लीज डू इट ऑन पबमेड. ठीक है. सो हमने वही सिंपल हाइपरटेंशन सॉल्ट इनटेक सर्च किया. नेक्स्ट करो ना मैं. यस सर. ओके, किया. Then this is the page that comes up. So let's understand it. Again, first of all, कि you can see the results. 5,000. उसमें कितने आए थे गूगल स्कॉलर में? 5,60,000 समथिंग, है ना. एंड जस्ट सी द डिफरेंस. क्योंकि अभी लग रहा है कि ऐसा तो है नहीं हमें सारे पढ़ने हैं, बट जब when you will be doing actual research, the number of results that pop up वो बहुत मैटर करता है. वो मैं जब मेरा सेशन होगा लिटरेचर रिव्यू का तब बताऊंगा. सो एक तो ये हो गया. देन अगेन यू सी, this is the title of the study, this is the author of the study, then comes this. आपको ये समझना है कि what is this thing. ये जो लिखा है, ये क्योंकि थोड़ा डेंजर सा लगता है कि है क्या, बट दिस इज वेरी सिंपल, है ना. लिखा है एडवांस, I don't know, HP form medicine biology. This is the name of the journal. This 2017 is the year जब when this research was published. Then comes the volume and the issue. उन्होंने थोड़ा नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया है, बट यूजली वो ब्रैकेट फॉर्म में होता है, वही 12 ब्रैकेट 1 उस वाले फॉर्मेट में होता है. एंड देन दिस इज द पेज नंबर, ना, कि इस व्हेनेवर यू विल, चाहे आप ऑनलाइन इसे सब्सक्राइब करो या फिर ऑफलाइन लो, तो 61 to 84 पेज नंबर पे आपको ये सेम रिसर्च मिल जाएगा. एंड देन ये आता है DOI. दिस इज इम्पोर्टेंट. हर रिसर्च पेपर का एक यूनिक ऑनलाइन एड्रेस है. दिस इज टोटली यूनिक. जितने भी बिलियंस ऑफ रिसर्च हैं सबका एक डिफरेंट एड्रेस है. आपको खाली इतना ये गूगल कर दो, वही एग्जैक्ट पेपर खुल के आ जाएगा. तो दिस इज दैट यूनिक एड्रेस. एंड इसको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार यू डू नॉट हैव दी ये रिसर्च करना है. जैसे मान लो कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, कुछ चल रही है, तो यू कैन नॉट हर जगह उसका नाम दे सकते हैं. कई जगह सिर्फ DOI अवेलेबल होता है.
and if you have to search, so DOI is the standard. तो ये जो यूनिक एड्रेस है, दिस इज फॉर ऑल जर्नल, ऑल द रिसर्च पेपर्स दैट एग्जिस्ट, है ना, ऑल द रिसर्च पेपर इन द वर्ल्ड. बट ये वाला जो है, व्हाट इज दिस PMID? सो PMID is the unique address for the research paper that are present only on PubMed. ना PubMed पे all सारे रिसर्च पेपर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेलेक्टेड अच्छे वाले प्रेजेंट हैं. तो उन सबका एक यूनिक नंबर है, अगर इसको भी डाल दोगे तो यू कैन नो, आपको सिर्फ ये नंबर पता होना चाहिए, एंड जब ये गूगल करोगे तो ये पेपर खुल के आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट इट इज. देन कम्स दिस रिव्यू. रिसर्च पेपर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लाइक देयर आर ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स जो कि मोस्टली हम करेंगे. देन देयर आर रिव्यू पेपर्स, देयर आर मेटा एनालिसिस, एंड देयर आर वो केस कंट्रोल स्टडीज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, काफी टाइप के होते हैं. वो मैं जो सेशन आएगा टाइप्स ऑफ स्टडीज में, उस पे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. तो दिस टेल्स कि ये रिव्यू है, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल रिसर्च पेपर, दिस इज अ रिव्यू. रिव्यू में मतलब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, रिव्यू में मल्टीपल ओरिजिनल स्टडीज को लेते हैं एंड फिर उसको कंपेयर करते हैं. तो दैट इज समथिंग व्हाट रिव्यू इज. एंड देन अगेन दिस इज द बॉडी ऑफ इट, जिसमें कीवर्ड सर्च हुए हैं ना. दिस इज सिंपल. देन यहाँ पे आता है ये चीज क्या है. देन अगेन वही सेम, जो आपको 10 से 20 साल के ही रिलेवेंट है, आपको ये इतने पुराने वाले नहीं चाहिए, राइट. सो इसको हम यहाँ से इसको थोड़ा हम स्लाइडर शिफ्ट कर देंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो मैंने 20 साल का विंडो ले लिया मैंने, एंड 20 साल का विंडो लेने पे इसी मेरे 2000 रिजल्ट्स कम हो गए, विच इज वेरी यूजफुल. देन व्हाट आर दीस ऑप्शंस, ये भी और भी फिल्टर्स अवेलेबल हैं. सो इन फिल्टर्स को देखें. तो अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट, फ्री, फुल टेक्स्ट, इसको मैं अभी आता हूँ इन अ मिनट. एसोसिएटेड डाटा, अगर जो रिसर्च है इसमें जो डेटा यूज हुआ है, अगर आपको चाहिए वही रिसर्च पेपर चाहिए जिनका डेटा अवेलेबल है, ओरिजिनल डेटा जिनसे उन्होंने रिसर्च किया, तो इसमें ये आएगा. देन मैं बता रहा बहुत टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. देयर बुक्स भी पबमेड पे इंडेक्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, मेटा एनालिसिस, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू. तो अगर सिर्फ वही पेपर्स चाहिए तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर. देन कम ये वही सिमिलर यो एक पब्लिकेशन डेट रेंज सेट करने के लिए. तो नेक्स्ट लेट्स, तो हमने सर्च किया है, तो मैंने वही बात की थी कि इसकी बात करने जा रहे हैं. एब्स्ट्रैक्ट, फ्री, फुल टेक्स्ट एंड फुल टेक्स्ट क्या होता है ये, राइट. सो एब्स्ट्रैक्ट मैंने बता दिया है. एब्स्ट्रैक्ट इज द सम जिस्ट ऑफ द पेपर. एब्स्ट्रैक्ट हर पेपर का रहेगा, चाहे वो पेपर फ्री हो, चाहे पेड हो, एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट रहेगा, है ना. तो अगर ऐसे पेपर्स, क्योंकि जब हम जल्दी मालूम मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कुछ रेलिवेंट पेपर्स ढूंढने हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं पूरा हर लिंक को खोल के सब पूरा पेपर पढ़ूँ, है ना. तो एब्स्ट्रैक्ट से मेरा टाइम बचता है, मैं खाली इसका एक समरी पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा मेरे काम का है कि नहीं है. तो वो एब्स्ट्रैक्ट का यूज है. देन कम्स दिस फ्री आर्टिकल. ये फ्री आर्टिकल, एक तो ये फ्री आर्टिकल है और एक फ्री PMC आर्टिकल है. इसमें डिफरेंस क्या होता है, दैट आई ट्राई टू टेल यू. पहले फ्री आर्टिकल खोलते हैं, हमने इस पर क्लिक किया तो ये खुलेगा. तो अगेन वो पेपर खुल गया. डेली सॉल्ट इनटेक इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर पॉलीक्यूरिया एंड नॉक्ट्यूरिया. दिस इज द रिसर्च पेपर. बट इसमें ये फ्री आर्टिकल का क्या मतलब हुआ कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो है ना, ये तो बेसलाइन है, ये तो अवेलेबल हो गई, तो इसको हटाओ. फ्री मतलब हुआ कि इसका जो फुल टेक्स्ट है वो उसके ओरिजिनल जर्नल साइट पे अवेलेबल है. रिमेंबर, पबमेड इज अ लाइब्रेरी, है ना. ये रिसर्च पबमेड ने नहीं की है, मतलब पबमेड पे पब्लिश नहीं हुई है, ये रिसर्च पब्लिश की है वायलिन, वायली. रिमेंबर जो आपकी वोल्टेज ग्लोबल वाली बुक होगी उस पर भी वायली रहता है यूजली. तो ये रिसर्च वायलिन पब्लिश की है. तो फ्री आर्टिकल्स मीन्स कि वो रिसर्च विल बी अवेलेबल एट द जर्नल साइट ना. तो लेट्स, अगर हम इस जर्नल साइट को खोलें, बिफोर दैट ऑप्शंस में ये तो न्यू है. दिस इज द टॉपिक, ये मैंने समझा ही दिया, हाउ डू यू रीड दिस, एंड दीज आर द ऑथर्स. बट इफ आपको जानना है कि ऑथर्स कहाँ से हैं ना, बिकॉज इट मैटर्स की, बिकॉज लाइक ऑथर्स अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, लेट्स से जॉन हॉपकिंस या दिल्ली टाइप का, तो उसका पेपर की यू डू वांट टू रीड दैट पेपर. तो यहाँ पे यू क्लिक ऑन दिस एफिलिएशन and you can see Department of Urology, Nagasaki University, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki, Japan. So you can get it यहाँ पे. Okay. And then तो let's say अगर मैंने यहाँ
यहाँ पे क्लिक किया वाइली पे ना, जो जर्नल साइट है, सो क्या खुलता है? ओके सॉरी, बिफोर दैट अगेन मैंने बताया था you have to cite है ना, you have to quote these papers. तो how do you quote it? There is a proper method जिसको इसीलिए ये साइट वाला बटन होता है कि जो कोड करने का तरीका है उसका एक स्टैंडर्ड मेथड है एंड यू हैव टू ओनली फॉलो दैट फॉर्मेट. कोई और तरीका नहीं मान, मतलब मैं सिंपली ये आर्टिकल लिख दूं या फिर इसका लिंक कॉपी पेस्ट कर दूं, वो नहीं चलेगा. तो अगर मैं साइट पे क्लिक करूं, सो दिस इज व्हाट ओपन्स अप ना, आपको यही इसी चीज को कॉपी पेस्ट करना होता है एंड अपने रिसर्च पेपर में पेस्ट करना होता है. दिस इज साइटेशन है ना, एंड ये सेम चीज पढ़ा जाएगा जैसे हम बताया था. ऑथर नेम, देन नेम ऑफ द, देन टाइटल ऑफ द पेपर, देन वो जर्नल का नाम, देन दिस. तो ये आप सिंपली कॉपी पेस्ट करना होता है. सो देन अगर हम इस पे फुल टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आपका जर्नल का साइट खुल गया है ना. दिस इज द जर्नल साइट. सो अगेन जितनी भी जर्नल्स हैं सबकी खुद की साइट है एंड ऑल द साइट्स लुक डिफरेंट, बट जो उनका जनरल कॉन्सेप्ट होता है दैट इज प्रेटी मच सेम है ना. यू अगेन हैव द टाइटल, द ऑथर्स नेम, द एब्स्ट्रैक्ट एंड देन दिस इज द हेडिंग, ये सब है. तो एंड अनदर थिंग जो मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि जो पहले लिखा होगा दैट इज द वॉल्यूम एंड जो ब्रैकेट में होगा दैट इज द इशू नंबर. यू कैन सी, क्योंकि ये जनरल साइट है, वॉल्यूम 24 इशू 5, that is a page just to this. So this is what a journal site looks like. Then on, तो ये अगर मैं ये फ्री आर्टिकल बात करता हूँ, फ्री आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा, बट यू कैन ऑल्सो गो टू द जर्नल साइट. नेक्स्ट, तो अनुपमा, दैट वाज फाइन. आगे बढ़े. yes sir. ओके, तो देन वी कम टू समथिंग, फ्री पीएमसी आर्टिकल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस. तो हमने इस पर क्लिक किया एंड ये खुला टेस्ट सॉल्ट कंजप्शन एंड लोकल एक्सप्लेनेशन अराउंड हाइपरटेंशन इन रूरल पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न पेरू. एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज ओवर हियर. जो आपकी जर्नल की लिंक है वो तो प्रेजेंट है ही, बट दिस पीएमसी फुल टेक्स्ट इज आल्सो प्रेजेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट जो पूरा पेपर है वो पबमेड पे भी प्रेजेंट है, ये मतलब है इसका. तो इसका कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है, बट कभी कभार तुम्हारे पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, क्योंकि हर जर्नल का वो क्या कहते हैं, साइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो इट माइट नॉट अपील टू यू. तो इफ यू आर रीडिंग पेपर्स एंड आप पबमेड पे पढ़ो, पबमेड का जो अगर एक सेम साइट पे पढ़ोगे तो उसका पेपर का जिस तरह दिखेगा साइट पे दैट इज कॉन्स्टेंट, तो वो थोड़ा विजुअली अपीलिंग होता है. तो दैट इज द ओनली बेनिफिट. सो इफ आई क्लिक ऑन पीएमसी, दिस इज द, ये पबमेड में ही सेम पेपर खुल जाएगा है ना. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो इसमें अगर इसमें हम एक्सप्लेन करें, सो अगेन कहांगे ये सेम चीजें, सब कुछ हर साइट पे सब कुछ सेम दिखता है. सो इसके अंदर एज यूजुअल एब्स्ट्रैक्ट है, सारे पेपर एब्स्ट्रैक्ट से ही शुरू होते हैं है ना हर पेपर में. देन ये मैं आगे अभी डिटेल में बताऊंगा पेपर के पार्ट क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये फुल पेपर है तो इसमें इंट्रोडक्शन भी है, मटेरियल्स एंड मेथड्स भी है ना, ये सब मटेरियल्स, देन डेटा कलेक्शन, रिजल्ट, सब कुछ, बिकॉज इट इज अ फुल पेपर, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है, राइट. सो अगर इफ बैक टू इट, सो ये वाला ऑप्शन मैंने बता दिया, साइटेशन, राइट, कैसे करते हैं. यू जस्ट क्लिक ऑन इट, तो उसमें कॉपी पेस्ट वाली लिंक आ जाएगी. यहाँ से यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ. दिस इज द ऑप्शन टू डाउनलोड द ई बुक वर्जन, मतलब जो गूगल बुक्स या किंडल वर्जन, तो इसे ई पब डाउनलोड कर सकते हैं. देन व्हाट इज दिस पब रीडर है ना. तो जैसे नॉर्मली रीड करेंगे तो पेपर ऐसा दिखेगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली चलता रहेगा एंड यू हैव टू रीड इट. इट कुड बी दिस इज नॉट अपीलिंग टू मेनी पीपल. तो इसको थोड़ा अपीलिंग बनाने के लिए ऑनलाइन पब रीडर है. व्हेन यू क्लिक ऑन इट तो बिल्कुल ई बुक के फॉर्मेट में खुल जाता है ना, तो बिल्कुल ई बुक का फॉर्मेट है. यू कैन यहाँ से सिंपली आप नेक्स्ट करते रहो एंड पेज की तरफ पलटता जाएगा. यू कैन कीप डूइंग इट. दिस इज द ओनली थिंग ना. सो वी आर डन विथ फ्री आर्टिकल, फ्री पीएमसी. ओके अनुपमा, ओके. यस सर. हाँ, तो अब दिस इज डन है ना. अब वी नो हाउ टू लुक फॉर अ रिसर्च पेपर, और जो दिखेगा उसका मतलब क्या होता है. तो अब एक्चुअली आते हैं हाउ डू वी एक्चुअली रीड अ रिसर्च पेपर. तो कोई भी रिसर्च पेपर खोल लेते हैं, ये वाला खोल लेते हैं ना, ये वाला
कर लेते हैं। तो ये हम वहाँ गए, क्योंकि फ्री आर्टिकल था तो जनरल साइट पे गए, जनरल साइट पे जाके हमने इसे डाउनलोड कर लिया। ये दिस इज द ओरिजिनल पेपर। सो लेट्स लर्न हाउ टू रीड अ पेपर। तो अब जो होगा हम विल स्टार्ट रीडिंग। दिस इज द पेपर, ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, है ना। तो अगेन जो पेपर आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ फॉर्म में, उसका भी जो जनरल फॉर्मेट है सॉर्ट ऑफ साइट जैसा ही होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ऊपर आएगा कि किस जर्नल पब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ यूरोलॉजी, ये वॉल्यूम एंड इशू, ये पेज नंबर हो गया। अगेन ओरिजिनल आर्टिकल, इट्स नॉट अ रिव्यू, इट्स एन ओरिजिनल आर्टिकल। क्लिनिकली, जो मैं बताता ना कि आप जो रिसर्च आप क्लिनिकली भी कर सकते हो, तो दिस इज क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। तो अब लेट्स रीड इट टुगेदर, है ना। मैं पढ़ूंगा, बट आई वांट कि आप मेरे साथ भी पढ़ो, बिकॉज दिस इज बहुत लोगों के लिए आप पहले रिसर्च पेपर होगा, तो मजा आएगा। लेट्स रीड। ओके, सो द टॉपिक फॉर द हाइपोथेसिस, टॉपिक में फिर हाइपोथेसिस जो होता है ये है, डेली सॉल्ट इनटेक is an independent risk factor for polyuria. Polyuria is polyuria. Polyuria means for the first years the frequency of urinating increases. तो in case हाँ पेपर पढ़ते वक्त आपको जो भी टर्म समझना है, you cannot ignore it, हाँ। मतलब जैसे नॉवेल्स में होता है, you can ignore the term, आगे समझ में आ जाता है, बट नो, वहीं पे रुकना, गूगल सर्च इट, तभी आगे बढ़ना, वरना it won't make sense. So risk daily salt intake is an independent risk factor for polyuria. I'll say just polyuria, आपको बोलने में आसान है। For polyuria and nocturia. Nocturia is bedwetting, रात में यूरिन। So these are the authors, Tomohiro Yasuyushi Hideki. कहाँ से हैं? It's important now. Department of Urology, Nagasaki University Graduate School of Medical Sciences, Nagasaki, Japan। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। This is the abstract. ये आपको सबसे पहले पढ़ना होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट में ये जो जनरल हेडिंग है, ये जनरल हेडिंग पेपर की भी सेम होती हैं, बस उन्हीं जो चीज़ वहाँ पे 500 या 1000 वर्ड में लिखी है, वो यहाँ पे 100 या 100 वर्ड्स में लिखी है ना। तो जल्दी जल्दी लेट्स से कि इस पेपर में है क्या। तो ऑब्जेक्टिव इज टू क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डेली सॉल्ट इनटेक एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स ना। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो ऑब्जेक्टिव कि जो मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड है कि नहीं। देन मेथड्स क्रॉस सेक्शनल क्लिनिकल, मतलब चलो मैं इसको आगे बता देता हूँ। तो ऐसे यू कैन रीड द मेथड्स, द रिजल्ट्स एंड द कंक्लूजंस ना। तो जल्दी से पढ़ लिया। तो इट टर्न्स आउट कि दिस पेपर इज यूजफुल टू मी, तब मैं इसे आगे पढ़ूंगा। एंड मैनी पेपर्स में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं, बिकॉज पेपर में वो टर्म्स कई बार मेंशन होते हैं, तो दे यूजली यूज शॉर्ट फॉर्म्स। तो एक स्टैंडर्ड वो दे देते हैं, यू हैव टू कीप रेफरिंग टू इट अगर आपको याद ना है। सो पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दे डिस्क्राइब ओवर कि इसमें सब कुछ डिस्क्राइब होता है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया, है ना। अगर मैं हाइपरटेंशन और सॉल्ट इनटेक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें रहेगा कि उसमें मैं लिखा रहा हूँ, मैं उसमें लिखूंगा कि देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द सॉल्ट इनटेक एंड हाइपरटेंशन, एंड वहाँ पे मैं साइड उसका रेफरेंस भी दूंगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन में एक पूरी बैक स्टोरी जाएगी। देन जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसकी पूरी डेफिनेशन, मतलब इसमें हाइपरटेंशन की डेफिनेशन होगी, इसमें अब क्योंकि जैसे लोअर यूनिटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का है, तो सब कुछ इसमें डिफाइंड होगा। समझ लो एक दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एसे, कि इसमें आपको सब कुछ बताना होता है कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया। तो अगर देखें, LUTS refer to the abbreviation lower urinary tract symptoms are known to affect the quality of life. फर्स्ट ईयर्स को नहीं पता होगा, सेकंड ईयर को क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इट्स PSM में भी सी कि मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि कितनी अच्छी लाइफ वो जी रहा है। सिंपल जस्ट लिटिल अंडरस्टैंड लिटिल मीनिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ की उसकी लाइफ अच्छी है या बुरी है, मतलब इतना इतना जान लो। सो इज lower urinary tract symptoms are known to affect quality of life of patients. Nocturia among lower urinary tract symptoms is associated with patient mortality. अब understand this. इसने कहा कि nocturia among LUTS is associated with patient mortality. Then यहाँ पे there is this one. So this is known as referencing symptom. This is a method of referencing. And this particular way is known as Vancouver method. है ना। तो आप जो भी रिसर्च करोगे, you will be doing via the Vancouver method, है ना। So and ये वन किया है, अभी I'll show you at the last में, अभी दिखा देता हूँ। लास्ट में there are this ये रेफरेंसेस सेक्शन है, तो वन पूरा टोटल इसमें 29 रेफरेंसेस यूज हुए हैं।
एंड जो वन था इट मीन डेज, कि मैंने ये जो बोला है मैंने इस स्टडी के बेसिस पे बोला है, क्योंकि मैंने बताया यू कैन नॉट से एनीथिंग, इट्स अ रिसर्च पेपर, इट्स नॉट एन फिक्शन नॉवल। एवरी सिंगल थिंग यू से, चाहे छोटा छोटा फैक्ट हो, यू हैव टू गिव अ रेफरेंस। तो दिस इज व्हाट इट मीन। कमिंग बैक, सो मैं, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ी बस ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। तो मैं आई शेयर माई प्रेजेंटेशन एंड ये पीडीएफ भी आफ्टर द सेशन, तो आराम से रूम पे पढ़ लेना। तो मैं अभी इसलिए आई एम गिविंग, आई जस्ट वांटेड टू गिव द आइडिया कि इंट्रोडक्शन में इट they give a general idea about everything, है ना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एंड मैं रिसर्च कर, ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं हम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये सब रहता है। So in addition, among LOTS, polyuria and nocturia are reported to be most bothersome symptoms. References 2 and 3. Reportedly increased frequency causes various pathologies. हाँ, क्योंकि नॉट वो यहाँ पे they are stating the problem statement कि ये दिक्कतें होती हैं, and I think my research can find something useful about it. फर्स्ट सेशन से याद होगा जिन्होंने अटेंड किया है कि why do we do research? We have to add to the knowledge of humanity, and if we find, if we, the more knowledge we have, the more we can help patients, right? So ये सब है। तो further more sorting is known to cause direct or indirect polyuria related diseases, okay? However, मैं खाली skip कर रहा हूँ ना, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। However, there are no reports in the support of this hypothesis. Several studies have reported that no significant relation exists. ना, they are again stating कि why are they doing research? कि जो हमने सोचा है when we search for it, उस पे enough data available नहीं था ना। This is one of the reasons कि देखो रिसर्च आप किसी भी चीज पे कर सकते हो, बट यू हैव टू, है ना, ऑलवेज मेक इट अ प्रेफरेंस कि उस चीज पे रिसर्च करो जिसपे ऑलरेडी डेटा अवेलेबल नहीं है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, इफ यू डू समथिंग जिसपे ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई पॉइंट नहीं करने का। तो दीज गाइस दे वांटेड टू डू समथिंग जिसपे सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं था। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो आई एम कमिंग टू मेथड्स। अनुपमा, मैं मेथड स्टार्ट करूं? बेसिक आइडिया लग गया है यस व्हाट इज सर। इंट्रोडक्शन? हाँ हाँ। तो हाँ सर। ओके, यूजली हम कई बार ऐसा होता है कि कई सारे पेपर्स में इंट्रोडक्शन के बाद वी डोंट डायरेक्टली गो टू मेथड्स ना। मेथड्स बहुत ही टेक्निकल पार्ट होता है एंड यू मे और मे नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम यूजली जंप टू रिजल्ट्स, कि पहले लेट्स भले ही समझ तो नहीं कि हाँ चलो अभी समझिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, एंड चलो एटलीस्ट देख लें कि कंक्लूजन क्या आया। तो उससे फ्रेमवर्क खाली इतना एडवांटेज होता है कि थोड़ा पेपर पढ़ने में थोड़ा बोर कम होते हैं, क्योंकि सब पेपर्स कैन गेट बोरिंग ना। तो खाली इतना एडवांटेज है। बट यहाँ पे आई एम गोइंग विद दिस, मैं यहाँ पे मतलब ऑर्डर में ही पढ़ रहा हूँ ताकि बार बार आगे पीछे आना पड़ेगा। सो मेथड्स में यू हैव टू, जो भी मेथड होगा, इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि जो गुड रिसर्च होता है एंड जो बैड रिसर्च होता है, नॉट सो गुड रिसर्च, उसका डिफ्रेंशिएशन या मेथड्स में आता है। आपने जिस तरीके से रिसर्च किया है, दैट इज करेक्ट और नॉट, है ना। मान लो यू केम टू अ कंक्लूजन, एंड बट वो कंक्लूजन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने रिसर्च ही गलत तरीके से की थी, राइट? तो दिस इज रिले, इसलिए रिसर्च में जो भी किया जाता है, एवरी सिंगल स्टेप हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। जब डॉक्यूमेंटेड होगा, एंड लेट्स से आई एम अ रिव्यूअर और मैं इनकी रिसर्च पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई भी गलती दिखेगी, आई कैन इन्फॉर्म देम एंड द जनरल साइड कि दिस रिसर्च, ये गलतियां हैं, तो दिस रिसर्च कैन बी टेकन बैक, ताकि हम बेटर, ताकि ओनली द राइट इंफॉर्मेशन स्टेज पब्लिश्ड। तो ये फायदा है। तो इसमें सब उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब किया, उन्होंने कैसे किया। द प्रेजेंट क्रॉस सेक्शनल क्लिनिकल स्टडी, एक सेक्शन होना है टाइप्स ऑफ स्टडीज पे, तो उसमें आई विल एक्सप्लेन व्हाट क्रॉस सेक्शन इज। अभी के लिए जान लो क्रॉस सेक्शन मतलब, एंड मोस्टली यू विल बी डूइंग क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, है ना। जो मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन से बताऊंगा वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती क्या है। was carried out from टाइम दिया हुआ अप्रैल 2013 टू मार्च 2015। और किन में कराया था? फॉर पेशेंट्स विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। इन कहाँ पे कराया था? इन नागासाकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, है ना। सो दे आर डिस्क्राइब एवरीथिंग, कहाँ क्यों कहाँ कैसे सब बता दिया। देन देयर समथिंग कॉल्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया मतलब नाम में ही है इंक्लूजन, किन किन को आप इंक्लूड करोगे। तो इंक्लूड इन्होंने यहाँ लिखी दिया है,
फॉर पेशेंट्स विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम, जितने भी पेशेंट्स को लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होगा हम उनको अपनी रिसर्च में लेंगे. देन कम्स द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. अब जितने भी है सबको नहीं ले सकते, किन किन को नहीं लेंगे. तो वी विल नॉट टेक जिनको अक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर एनी कंडीशन अफेक्टिंग यूरिनरी फंक्शन including a history of pelvic surgery, obvious bladder overactivity, benign prostatic hyperplasia, urethral stricture, pelvic organ prolapse, urological malignancy and neurogenic bladder. तो अगर कोई पेशेंट आया भले उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं लेकिन अगर इनमें से कुछ भी होगा तो वी विल नॉट टेक हिम और हर इन द स्टडी. राइट. देन कितने लोगों पर उन्होंने स्टडी की. वी एनरोल 728 पार्टिसिपेंट्स. दिस इज समथिंग नोन एज सैंपल साइज. सो सैंपल साइज पे भी एक पूरा डिफरेंट लेक्चर है ना, जब मुझे टाइम मिलेगा अभी टेक इट. तो सैंपल साइज 728 लोगों को उन्होंने अपने स्टडी में लिया. 259 मेन थे, 49 वुमेन थे. तो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लेक्चर में बताया जाएगा. हु विजिटेड अ इंस्टीट्यूशन और प्लान टू बी एडमिटेड फॉर डिजीज. ओके. पेशेंट वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. ये पूरा डिफाइन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया. देखिए उन्होंने जब पेशेंट्स आ गए उन्होंने उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया. जिनका सॉल्ट इनटेक हाई था, है ना, दैट इज, और जिनका सॉल्ट इंटेक लो था एंड जिनका सॉल्ट इंटेक हाई था. एंड देन द लास्ट पार्ट, दिस स्टडी वाज अप्रूव्ड बाय नागासाकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एथिकल कमिटी. दिस इज एक्सट्रीमली important. You cannot do research if your research has not been approved by the ethical committee. Ethical committee हर इंस्टीट्यूट में होती है, हमारे कॉलेज में भी है. एंड एथिकल कमिटी का अप्रूवल आपको रिसर्च स्टार्ट करने से पहले लेना पड़ता है. बिकॉज वाई इज दिस सिस्टम, क्योंकि किसी क्या गारंटी है कि यू वोंट डू एनीथिंग अनएथिकल. मान लो योर रिसर्च इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स गिविंग ड्रग्स टू ह्यूमंस, है ना, मान लो वो दैट उस ड्रग का साइड इफेक्ट इज डेथ, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. तो इसलिए ये सिस्टम है. उसको भी अलग से आई विल, वन ऑफ द लास्ट क्लासेस मेरी एथिक्स पे है. ओके. तो उसी में फर्दर ये वाला तो सबसे पहले होता है कि एक जनरल क्या कर रहे हैं. देन इसके आगे आता है कि एग्जैक्टली जब उन्होंने सब कुछ डिवाइड कर लिया तो वो क्या देखेंगे एंड क्या. तो दिस इज द स्पेसिफिक्स ऑफ द रिसर्च, है ना. ये जो भी तुम्हारा हाइपोथेसिस होगी तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड बाद में पढ़ लेना. यू जस्ट गेट द आइडिया कि ये वाला पार्ट इज, पहले जनरल आइडिया आएगा देन वो स्पेसिफिक्स में चले जाएंगे. ओके. तो ये हो गया यहाँ पे सब डिफाइन करें उन्होंने क्या क्या किया. देन कम्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने बताया था रिसर्च करने पे डेटा आता है ना, फिर डेटा को एनालाइज करना होता है. तो दिस इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पार्ट. तो डेटा आगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट, और मतलब फैकल्टी के लिए डिफिकल्ट होता है. तो हम तो वी आर अंडर ग्रेजुएट्स, बट जिसको आता है दैट पर्सन कैन डू बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. नहीं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए we hand over the data to a statistician. There are designated statisticians, वो ये काम करते हैं. तो अभी I won't go into this क्योंकि अभी खासकर फर्स्ट ईयर को स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन तो सबको पता होगा, बट स्टैंडर्ड डिविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, पियर्सन्स कोरिलेशन, ये सब पी वैल्यूज, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ये सब आप ऑड्स रेशियो, ये सब आपको भी नहीं पता है ना. दीज आर, ये सब पूरा बायोस्टैट्स का jargon है, बायोस्टैट्स की लैंग्वेज है. तो जब थर्ड ईयर वाले समझ आए, थर्ड ईयर यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, उनका मूड कर रहा है तो. बट फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर यू कैन सिंपली स्किप इट, है ना, कोई नुकसान नहीं होगा. आगे अनुपमा, मैं आगे बढ़ूं, रिजल्ट्स पे बढ़ूं. यस सर. सो रिजल्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स. कि हाइपोथेसिस इज फाइन, लेकिन आपको फाइनली आंसर जानना है ना. रिसर्च स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, बट आप रिसर्च करते रहो, यू वांट दैट आंसर. तो वो आंसर आपको रिजल्ट में मिलेगा. रिजल्ट एंड जो नेक्स्ट होता है कंक्लूजन, डिस्कशन या फिर कंक्लूजन ना, वहां पे आपको नेक्स्ट मिलेगा. सो अगेन रिजल्ट्स कैन बी वेरी हार्ड टू रीड क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारा जार्गन होगा, मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं डिफिकल्ट टर्म्स होंगे. सो लेकिन रिजल्ट पढ़ना इज इम्पोर्टेंट. तो रिजल्ट को बहुत ही पेशेंटली पढ़िएगा. इवन अगर समझ में ना आए तो गूगल इट. बट कई बार रिजल्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट.
उससे इसलिए लगता है कि देखो इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा है, बट अभी व्हेन आई रीड इट you'll understand कुछ था नहीं इसमें, लाइक इफ आई रीड as summarized in table 1, the mean age, mean सबको पता होगा ना, आई थिंक 11th you know 9th में से मतलब स्कूल से पता होता है सबको, मीन तो पता होगा। द मीन एज वाज 62.6 प्लस माइनस 14.3। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस वी हार्डली, मैं तुम्हें आपको क्लासेस में बताया होगा, वी हार्डली एवर गिव अ सिंगल वैल्यू, इट्स ऑलवेज अ रेंज। तो वो रेंज दिया है कि मीन एज वैरिड बिटवीन 62.6 प्लस माइनस 14.3 इयर्स। सिंपल। मीन बीएमआई सबको पता है, बॉडी मास इंडेक्स was 23.6 plus minus 4.4 kilogram per meter square. Fine. The mean estimated daily salt intake was 9.3 plus minus 2.7 gram. क्योंकि this research paper is based on daily salt intake, तो ये वाली मेंशन होनी ही है कि कितना mean salt intake कितना था। On comparing the L salt group, अगर नहीं याद आ रहा हो तो you can go back to the abbreviation, the low salt group, है ना, ना दो में डिवाइड किए थे, low salt group, high salt group। तो ऑन कंपेयरिंग द एल सॉल्ट ग्रुप, जो कि 364 लोग थे, एन मतलब सैंपल, मतलब एन मतलब नंबर, फ्रीक्वेंसी, एन इज अ नंबर, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो जब उन्होंने डिवाइड, टोटल 768 पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से 364 लोग वन एल सॉल्ट पार्टिसिपेंट्स, एल सॉल्ट ग्रुप, एंड एच सॉल्ट ग्रुप में भी 364 लोग थे। द मीन एज ऑफ द एल सॉल्ट ग्रुप वाज दिस एंड वाज सिग्निफिकेंटली हायर। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सिग्निफिकेंटली, देन आगे लिखा कि less than 0.001, this is known as p value। ये भी बायोस्टैट्स का पार्ट है, बट ये यहाँ पे मैं जस्ट इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ, पी वैल्यू हमेशा आएगी, एंड पी वैल्यू का पता होना इज अ बेसिक, मतलब जरूरी है रिसर्च पेपर समझने के लिए। तो मैं खाली इस पी वैल्यू की, मतलब जो आप रिसर्च करते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा, है ना। तो रिजल्ट जो आता है, तो हमें ये पता नहीं होता है कि वो रिजल्ट एक्चुअली, मतलब वो लेट्स से इसमें अगर हम कोई डिफरेंस ढूंढ रहे हैं ना, जैसे इसमें उन्होंने वो ये देखना चाह रहे थे कि सॉल्ट लेने से पॉलीयूरिया होता है कि नहीं होता है। तो जब उन्होंने रिसर्च की एंड उन्हें ऐसी फाइंडिंग मिली कि सॉल्ट लेने मतलब कि उनके पार्टिसिपेंट में पॉलीयूरिया हो रहा है, तो दे डू नॉट नो कि ये सॉल्ट की वजह से था कि हो सकता है बाई चांस भी हो सकता है ना। इट्स पॉसिबल, मतलब बहुत चीजें होती हैं जो आपको पॉलीयूरिया कॉज कर सकती हैं। तो दिस टेल्स कि आपको जो रिजल्ट आया है दैट इज नॉट बाय चांस, है ना, वो डिफरेंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, है ना, एंड वॉट एवर यू हैव फाउंड आउट दैट इज करेक्ट, है ना, दैट कैन बी अप्लाइड टू जनरल पॉपुलेशन। जैसे हमने सैंपल 768 लोगों का लिया था, बट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम पूरी दुनिया में सिर्फ 768 लोगों को तो है नहीं, बहुत लोगों को है। तो इफ योर रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट, देन these findings can be applied to the general population as well। ये इसकी बेसिक मीनिंग है। एंड जो कैसे पता होता है कि रिसर्च पेपर की फाइंडिंग सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो जो बेसिक बहुत लोगों को पता होगा जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं, देयर इज अ वेरी फेमस फेबल, वेरी फेमस स्टोरी एक उसकी आर्किमिडीज की, पी वैल्यू हैज टू बी लेस देन 0.05। ये याद कर लो, 0.05 याद करने का तरीके, 0.05 मींस 5%, 5%, रिमेंबर दैट। पी वैल्यू हैज टू बी लेस देन 0.305, अगर कम है तभी आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें p value is less than 0.0001, which means 0.1%, है ना। तो अगर तो anything less than 0.5 is significant, तो 0.001 is much less than 0.5, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका एक मतलब होता है कि अगर कोई चीज p value less than 0.05 है, तो you can say, मतलब द रिसर्चर कैन से कि आई कैन से विथ 95% कॉन्फिडेंस। क्यों? ये 5% है, 100 minus 5 is equal to 95%। तो इसका ये मतलब हुआ the researcher can say with 95% confidence that his results are significant, है ना। तो इसी तरह अगर इसकी p वैल्यू ये आई है, तो this researcher can say with 99.9% confidence कि his results are significant। ये एक जनरल मोटा मोटा व्यू है, बाकी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। फाइन अनुपमा, आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओके, एंड सॉरी बोर मत होना, बस ज्यादा बचा नहीं है। आई ओके, कहाँ था मैं, पी वैल्यू रखना, ठीक।
So there was a significant difference. ये बता दिया मैंने, significant difference in the prevalence of hyperlipidemia between L salt and H salt groups. अच्छा, इसमें एक चीज रहेगी, एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इन्होंने इसमें दिया है, आई डोंट नो व्हाई, बट जितने भी इंडियन रिसर्च पढ़ोगे यहाँ पे एक होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो उसमें वो क्लियरली डिफाइन करते हैं उनको करना क्या है. तो इन्होंने, मैं यहाँ से ले रहा हूँ. तो उसमें ऐसे जैसे वन लाइन का स्टेटमेंट है, ऐसे एक या दो वन लाइनर स्टेटमेंट होते हैं. उसमें वो क्लियरली लिख देते हैं कि इस रिसर्च से मुझे करना क्या है. तो ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया, बट स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो ऑब्जेक्टिव में होता है. तो इसमें क्या लिखा, क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन डेली सॉल्ट इनटेक एंड लोअर यूनिट ट्रैक्ट सिम्टम. ये इनका ऑब्जेक्टिव है ना. तो ये यूजली मेथड से पहले होता है, इन्होंने इसमें नहीं है, लेकिन इंडियन पेपर्स में यही नॉर्म है ना. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मेथड से पहले होता है. सो कमिंग बैक, यस, सो कहाँ गया, was significantly lower. Wait, हाँ, there was a significant difference in the prevalence of hyperlipidemia between L salt and H salt. ठीक है, अगेन एंड नंबर ऑफ होता है ना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कि 20.3%, कहाँ गया, मतलब 74 लोगों में डिफरेंस पाया गया. 20 एंड दिस जो एल सॉल्ट है उनमें 74 लोगों में डिफरेंस पाया गया. एंड जो हाई सॉल्ट ग्रुप था उनमें 45 लोग, यानी 12.4% लोगों में डिफरेंस पाया गया. Then the data regarding urinary sodium excretion and intake is also somewhere in table 1. When ये कोई abbreviation होगा देखना पड़ेगा. Estimated 24-hour urinary sodium excretion were compared. This okay. Between the L salt, ये salt का level है 81.5 plus minus 40.1 milligram per liter respectively. Both variables in the salt were significantly higher. In addition, a similar trend was found with regard to estimated daily intake and S salt group. So you see कि पूरे रिजल्ट में it was full of numbers, but at the end of the day अगर आपको इसकी मेथडोलॉजी क्लियर है ना कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो you can easily infer from the results. क्योंकि वो बस खाली वो नंबर समझने होते हैं, वो देखने में मुश्किल लगता है, बट यू कैन अंडरस्टैंड है ना जब कुछ भी रिलेटेड पढ़ेंगे. देन ये टेबल्स आती हैं, टेबल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट. अगर आपने रिजल्ट्स पढ़ा है तो रिजल्ट वही सेम चीज टेबल में भी है, बट टेबल थोड़ी डिटेल में होगी. तो तुम्हें जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल लग रहा है, अब वहाँ चाहे टेबल से पढ़ लो चाहे रिजल्ट से पढ़ लो. ठीक है, तो आई एम स्किपिंग ऑल दिस. देन लास्ट पार्ट आता है पेपर में, डिस्कशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि डिस्कशन में जो ऑथर्स होते हैं दे एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन कि जो भी उन्हें फाइंडिंग्स मिली उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होगा, उसके पीछे रीजन क्या होता है. तो दिस इज वेरी एनलाइटनिंग है ना. तो हर पे, और ये रिलेटिवली, तो एवरीवन शुड रीड इट. तो मैं खाली थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ. The present study shows that a daily salt intake was associated with daytime urinary frequency. It was associated with daytime urinary frequency, nocturia and diurnal and nocturnal urine volume, and also that excessively daily salt intake was an independent risk factor for polyuria and nocturia. They have proved it. It is an independent risk factor of research. Increased urinary frequency, especially nocturia, is well known to decrease quality of life. Again, इन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट स्टेट किया, तो उसके लिए एक रेफरेंस दिया. तो ऐसे ही दे हैव डिस्कस्ड ऑल दीज फाइंडिंग्स एक एक करके. दिस इज व्हाट डिस्कशन. अगेन ये आपकी मर्जी है, चाहो तो देख सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, वही सेम चीज है. सेम चीज को रिसर्च में you have to present data in graphical forms and in tabular form. ये आपको वो कम्युनिटी मेडिसिन सिखाया जाएगा ये सब कैसे करते हैं. सो दिस इज पॉसिबल. ये स्कैटर प्लॉट है, तो ये सब आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ेंगे, बट यू कैन स्किप इट है ना. जितना समझना है यू कैन अंडरस्टैंड रिजल्ट, या इससे भी पढ़ सकते हैं. अगेन यू कैन स्किप इट. ये डिस्कशन चल रहा है, तो डिस्कशन यू कैन आराम से जो भी पढ़ लेना. तो वही एक एक रिजल्ट को जितने भी फाइंडिंग्स आई हैं, तो जैसे one of the most interesting results is the finding that daily salt intake was a significant and independent predictive factor for polyuria on multivariate analysis. This is a way of analyzing, ये मतलब biostats में समझोगे. Regarding daytime frequency, the present results might be caused by salt intake related polydipsia. Polydipsia is drinking too much water. Due to increased osmotic pressure, they are trying to explain कैसे क्यों हो रहा होगा. Due to increased osmotic pressure of blood. Generally, long-term high salt intake induces the activation of the renin-angiotensin system, especially
in the kidney induces cell dehydration which causes an osmotic imbalance. ठीक है, तो डिस्कशन कैन बी क्वाइट लॉन्ग, ऑथर के ऊपर है, छोटे डिस्कशन भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो आई एम स्किपिंग, मतलब यू गॉट द आइडिया राइट. सो यहाँ पे लास्ट पढ़ रहा हूँ. इन कंक्लूजन, द प्रेजेंट रिजल्ट सजेस्ट दैट हाई सॉल्ट इनटेक लीड्स टू polyuria. I don't know why मैंने अलग लिख लिखा है. They basically mean the same thing. Leads to polyuria, and worse quality of life. Both daytime and nighttime urinary frequency and volume are influenced by daily salt intake. Further, detailed studies including sleeping hours, water intake, detailed evaluation of quality of life, impact, and hormonal assessment are necessary to clarify the influence of salt intake in polyalkaliuria. ये लास्ट इसमें ये इन्होंने डिस्कशन में क्लब कर दिया है, बट यूजली कई सारे पेपर्स है इसका अलग से सेक्शन होता है विद द नेम लिमिटेशंस. तो इट्स इम्पोर्टेंट हर पेपर में होगा कि यस पेपर में कई सारी पॉजिटिव फाइंडिंग हो सकती है, नेगेटिव फाइंडिंग भी हो सकती है, बट इट्स पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल कि आपको डिस्क्राइब करना है कि आपके पेपर से कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर किसी ने आपके पेपर से गलत इन्फ्लुएंस ले लिया तो दैट कैन लीड मतलब दिक्कत होती है इससे. डाउट कि इट इज अ रिस्क फैक्टर, हार्मोनल असेसमेंट वी स्टिल नीड दैट. तो ये है. और लास्ट में एक सेक्शन होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का. दिस इज समथिंग कि जो ऑथर्स हैं पेपर के, क्या और जो टॉपिक है रिसर्च का, क्या उससे उस पर रिसर्च करने से ऑथर को कोई फायदा हो रहा है. मतलब देर आर टॉपिक, मान लो आप अगर फार्माकोलॉजी कंपनीज जो होती हैं उस पे है ना, तो अगर जिस बंदे ने ड्रग ढूंढी है वही बंदा रिसर्च कर रहा है, तो पीपल माइट से कि बिकॉज उसका एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो ही माइट हैव फोर्स्ड फाइंडिंग, मतलब फॉल्स फाइंडिंग्स दे सकता है वो. तो यू हैव टू कि मतलब ऑथर्स का कोई लेना देना नहीं है. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल. देन लास्ट में यू हैव द क्या है, या द रेफरेंसेस है ना, जो पूरे पेपर में छोटे छोटे नंबर मिले थे, तो ये दीज आर द नंबर्स. तो थिंक इफ आई वांट टू वेरीफाई कि उसने कहाँ से लिखा है, तो आई जस्ट माइट गो. बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है एक मतलब ये कोई करता नहीं है, बट जस्ट कि तुम्हें लगे कि हैं ये तो कुछ मुझे सही नहीं लग रहा है, तो एटलीस्ट यू कैन गो टू द नेट एंड स्टडी, चेक द ओरिजिनल स्टडी. So this is what a research paper looks like, and this is how you study it. This was fine, Anupama? यस सर. हाँ, अब लास्ट बचा है, मतलब 2-3 मिनट का है ना. स्टे विथ मी, आई नो थोड़ा टाइम हो गया, आई एम सॉरी. दो 3 मिनट का चीजें बता दूं. तो मैंने आपसे बात की थी कि लाइक देयर आर फ्री पेपर्स एंड देयर आर पेड पेपर्स ना. तो ये समझ जितने फ्री पेपर्स तो मिल जाएगा, आप चाहे पबमेड पे पढ़ लो, चाहे पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ लो, राइट. बट ये पेड पेपर से कैसे पढ़ें, क्योंकि जब मैंने सर्च एंड कोई काफी सारे अच्छे पेपर्स पेड होते हैं. अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वाई फ्री और पेड वाला सिस्टम क्यों है. टेक्निकली ऑल एवरीथिंग शुड बी फ्री, है ना. नॉलेज है, वाई शुड नॉलेज बी पेड. बट पेड का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पेपर्स होते हैं ये जर्नल साइट्स पे होते हैं. जर्नल साइट्स मतलब किसी भी मैगजीन को सब्सक्राइब करने के लिए दे आस्क मनी ना. तो वो उनको अपनी कंपनी चलानी है, तो मैगजीन को चलाने के लिए दे नीड मनी. तो मनी पाने के दो तरीके हैं, या तो जो ऑथर उनकी साइट पब्लिश कर रहा है वो दे दे मनी, या तुम जो पढ़ रहे हो वो उन्हें पैसा दे दे. तो अगर ऑथर देगा उन्हें पैसे मिल गए तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो वो पेपर्स होते हैं फ्री, है ना. क्योंकि जिनमें पब्लिकेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं. बट जो जो फ्री में पब्लिश हुए हैं, तो अब उनको इनका जर्नल्स को पैसे चाहिए, तो वो तो कहेंगे कि बाय द आर्टिकल और गेट अ सब्सक्रिप्शन फॉर द जर्नल. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. गलत है, फ्री सिर्फ फ्री होना चाहिए, उस पर रिवोल्ट चल रहा है, बट दैट्स डिफरेंट थिंग. मैंने बता दिया बस. सो अगर तुम्हें पेड पेपर पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे. इसको लिख लो, मैं अभी व्हाट्सएप पे भी टाइप कर दूंगा, या फिर अभी मैं चैट पे टाइप कर दे रहा हूँ. अच्छा मैंने चैट, सॉरी मैं अभिषेक, आई डिडंट गेट बॉस, सॉरी मैं देख नहीं पाया. अभिषेक तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अलग से बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा. मैं देख नहीं पाया था, समझाते हैं, सॉरी. आई हैव गॉट टी. मैं ये मैं वो अभी गूगल पे भेज दूंगा. तो
there is this site sci-hub.tw. It's a pirate site है ना, लेकिन this is not a legal site, but this is something that everyone uses है ना, मतलब faculty, PhD students सब use करते हैं, मतलब you don't have to be afraid while using it. It is इसके लिए तो जो भी पेड पेपर है तो उसका या तो साइट का URL होगा, या जो मैंने PMID बताया था, पबमेड पे सबकी एक यूनिक आईडी होती है, या फिर DOI जो कि सारे रिसर्च पेपर को होता है, या फिर यू कैन सिंपली एंटर द नेम ऑफ द वो, मतलब पूरा सर्च नहीं डाल सकते हो, तो इनमें से कुछ भी जस्ट कॉपी पेस्ट इनटू इट, देन प्रेस ओपन। जैसे ऐसे ये वाला पेपर था, इनिशियली मैं दिखा था बाय करने को आ रहा था, तो मैं इसका चलो उसका DOI कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, मैं DOI कर रहा हूँ। DOI इजी होता है, सिंपली कॉपी पेस्ट DOI मैंने लाके मैंने पेस्ट कर दिया, एंड देन क्लिक ऑन ओपन, एंड वॉइला, है ना, जो पेपर इज राइट हियर, जो कि जिसके लिए आपको वो जो, हाँ, एक तो जनरल साइट बहुत महंगे होते हैं, डोंट परचेज सब्सक्रिप्शन, हजारों जनरल है, कितने सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, जब कमाने लगना खरीद लेना, अभी के लिए यूज दिस फ्री रिसोर्स ना, आपको पेपर हो गया, सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर यहाँ से सेव कर लो, यू नो कि ये जो पेपर था वही है, एंड दिस पर्सन है ना, यू हैव टू थैंक हर, शी इज अ रशियन हैकर, शी इज द वन हु डेवलप्ड SciHub, तो उसकी फोटो आती है ऐसे वेव करते हुए, then and the site is आपको सारे पेपर्स you will get on SciHub, but there are certain papers जो SciHub पे नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए some of you might already know it, मतलब बहुत लोग यहाँ से बुक्स डाउनलोड करते होंगे, लाइब्रेरी जेनेसिस, एक तो इसका ये साइट है gen.lib.rust.easy, बट इसका ऐसे यूजली libgen.is होता है, बट ये ब्लॉक हो जाता है, तो अगर ना खुले तो यू कैन सिंपली डाल libgen proxy, तो इस टाइप का कोई और आ जाएगा, जैसे यहाँ पे IS है, यहाँ पे ST है, तो ये आजकल काम नहीं कर रहा है, आजकल ये काम कर रहा है libgen.rs, तो चाहे ये डाल दो, चाहे ये gen.lib डाल दो, या फिर गूगल पे डाल दो, ये लाइब्रेरी जेनेसिस खुल जाएगा। यहाँ पे भी देन खोलते ही ये सब आ रहे हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट साइंटिफिक आर्टिकल्स ना, नॉर्मली इस पे रहता है, यहाँ से बुक्स हम डाउनलोड करते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल्स पे आके जैसे एंटर एनीथिंग, एंड मैंने DOI एंटर किया है, या कुछ भी एंटर कर सकते हैं, एंटर सर्च, एंड दे यू हैव द पेपर, ओके, इसके ये 4 लिंक्स हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर लो, ओके, एंड फाइनल स्लाइड, ये सब जो मैंने जितने भी बताया, गूगल पबमेड एंड एवरीथिंग डाउनलोड करके, दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग जब भी आप अपना रिसर्च कर रहे होगे ना, कुछ भी स्टार्ट कर रहे होगे, दिस इज द वे टू डू इट, बट अगर इफ यू वांट टू रीड रिसर्च पेपर जैसे एज अ हॉबी, आई सजेस्ट एवरीवन मेक अ हैबिट टू रीड रिसर्च पेपर्स, है ना, मतलब अलग से मेहनत नहीं करनी है, जैसे फर्स्ट ईयर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री में कुछ पढ़ा एंड यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, जस्ट उसको इस मेथड से सर्च कर लो एंड वो पढ़ो, ताकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट योर टाइम इज इम्पोर्टेंट, है ना, एवरी आवर इज इम्पोर्टेंट, तो ऐसे जस्ट फॉर रिसर्च आप फालतू अलग अलग चीजें पढ़ना नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा है, तो डू स्मार्ट थिंग्स, स्मार्ट थिंग टू डू इज जो भी पढ़ रहे हो वो कर लो। सेकेंड ईयर्स वाले पैथोलॉजी इतना, इट्स एन एंटायर रिसर्च सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड व्हाट इज इट फॉर माइक्रोबायोलॉजी, तो एंड थर्ड ईयर PSM ENT एनीथिंग ऑफ था, तो जो भी पढ़ रहे हो जस्ट सिंपली यू उसके बारे में पढ़ो, तो इट विल बी बेटर, टाइम बचेगा, एंड दीज एप्स दीज आर जस्ट फॉर अगर ऐसी एज अ हॉबी बनानी पढ़ने की, तो ये एंड्रॉइड में भी हैं और iOS पे भी हैं, यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ दिस ऐप, दोनों का काम सेम है, तो व्हाट इट डज इज मतलब ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स, तो इन एप्स पे यू कैन फॉलो दिस जर्नल्स, मतलब बहुत सारे जर्नल्स यू कैन फॉलो, जैसे मैंने नेचर को फॉलो कर लिया, मैंने NEJM को फॉलो कर लिया, मैंने लैंडसेट को फॉलो कर लिया, और इसमें टॉपिक्स भी आते हैं कि किन टॉपिक्स में, जैसे मैं एनाटॉमी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं फार्माकोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ENT में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने ये टॉपिक चूज कर लिया, तो फिर जो मेरी जो फीड आएगी उसमें इन्हीं सबसे रिलेटेड पेपर होंगे, जो भी लेटेस्ट पेपर होगा उस पर आता जाएगा, सो इट्स अ गुड वे टू कीप अप विद इट। तो जैसे अभी ये सेशन करने का मतलब क्या था मेरा, कि ताकि जो गाइस डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि कुछ भी रिसर्च यू कैन नॉट डू रिसर्च until you have not read enough, है ना, तो और आइडियाज भी पढ़ के आते हैं, तो यू कैन यूज दिस, है ना, तो दोनों हैं, तो यू कैन यूज दिस, तो दैट इज ऑल। एनी क्वेश्चंस, जिसको भी क्वेश्चन है यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, या फिर चैट पे डाल लो जो मन करे, या फिर यू कैन
डीएम में, व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे। कोई क्वेश्चन है किसी के पास भी? द सेशन इज ओवर, या फिर चाहो तो फिर लीव कर सकते हो। कोई अनुपमा फाइन, मतलब सब समझ में आया? यस सर आ गया सारा। ओके ठीक है, पक्का ना? ओके सर, क्वेश्चन नहीं है थैंक तो, यू। क्वेश्चन नहीं है, हाँ हाँ ओके, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चंस नहीं है तो यू कैन लीव इट, आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा, है ना? तो बीच में जिनका भी ऑडियो इश्यूज आया था, यू कैन वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब, और आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो यू कैन लीव द मीटिंग यो। कोई क्वेरी हो तो बाद में भेज देना, अभी तो कोई बता नहीं रहा है। एंड हाँ मतलब जस्ट आई एम सेइंग कि फर्स्ट ईयर से वी वर टोल्ड कि कम अननोन गो अननोन, या फिर डोंट आस्क क्वेश्चंस, प्लीज भूल जाओ उसे, है ना? वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो मैं यहाँ यूपी में बताई जाती है, बी इंक्विजिटिव। मैं आई एम जस्ट योर सीनियर, मुझसे नहीं, फैकल्टी से भी खुल के पूछो क्वेश्चंस। सो है ना, कभी भी डरना मत, है ना? जस्ट ऑलवेज हर चीज को क्वेश्चन करो, लुक अराउंड यू, जो भी इंटरेस्टिंग लगे, एंड इवन रीड बुक्स विद अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। सो ओके, दैट्स ऑल। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। मैं यू कैन लीव, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय। वेलकम शोभ, वेलकम अमित।